بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہمارے انتہائی متحرک اور دن رات محنت کش مزدور کی جنگ لڑنے والے ایک نوجوان وزیر نے آپ کو اپنی منسٹری کی 2020 کی کارکردگی بتانے کے لیے مدعو کیا۔ میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، اور میڈیا کی خاص طور پہ کہ یہاں سیٹھ کے ساتھ بڑے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار اور میراث یافتہ طبقات کی نمائندگی تو ہوا کرتی تھی۔ پہلی دفعہ محنت کش مزدور کی آواز اور اس آواز کے ساتھ جڑی عوام دوست پالیسیز میڈیا کی آنکھ سے عوام تک پہنچ رہی ہیں۔ آج یہاں اس پریس کانفرنس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے ساتھ جڑی ایک عملی حکمت عملی، ایک ڈیفائنڈ ایجنڈا اور اس پسے ہوئے طبقے کے ساتھ عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی درد اور احساس سے جڑا روڈ میپ۔ یہ ادارہ جس میں آپ کھڑے ہیں یہ پاکستان کے اور اوورآل جو صوبوں کا آپ ہیلتھ سٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہر صوبے کے اندر ایک ہیلتھ سٹرکچر جو ایگزسٹ کرتا ہے، سب سے لارجسٹ اس محکمہ صحت کے بعد اگر کسی مزدور کی صحت، اس کے ساتھ جڑے تمام صحت کے مسائل کے تدارک کے لیے جو ادارہ چھتری دیتا ہے وہ سوشل سیکیورٹی سٹرکچر ہے، جو ورکرز ویلفیئر فنڈ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے جو محنت کش مزدور کے حقوق کی تحفظ کا ضامن بنتا ہے، وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کی ویژن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ایک پریکٹیکل حکمت عملی اور لیبر کی لیبر پالیسی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ ہم نے جو نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، جو ڈپرائیوڈ کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، جن کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا، پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والا محنت کش مزدور ہے۔ ان کی ہم نے آس بننا ہے، امید بننا ہے، سہارا بننا ہے، سپورٹ بننا ہے، اور یہ ساری ویژن جو ہے اس کو ایک پالیسی میں ڈال کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ جو پنجاب سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی، لیبر پالیسی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپنے اس متحرک وزیر کو جس طرح سے ایک ایسی اوپن گراؤنڈ جس میں وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس مزدور دوست سوچ کو پروموٹ کرنے میں مصروف عمل ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ سے اپنی 2020 کی جو کارکردگی ہے حکومت میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں لیبر منسٹری عوام دوست، مزدور دوست، محنت کش کو ریلیف دینے کے لیے اور عام
पंजाब के अंदर बसने वाले शहरियों को समाजी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं वो आपसे उस हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान का शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ, और चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का उस्मान बुज़दार साहब का कि जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी दी है, मेरे कंधों पर डाली, और इतना बड़ा महकमा, और वो महकमा कि जो बिलखुसूस सिर्फ़ और सिर्फ लेबर के लिए काम करता है, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता है। और उसके अंदर क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो पंजाब की लेबर है, अगर 12 करोड़ आवाम है तो कम से कम भी जो हमारी फॉर्मर और इनफॉर्मल लेबर है वो कम से कम भी 3 से 4 करोड़ है, और हमारा मईशत का पहिया भी इसी लेबर की ही वजह से चलता है। तो इस हवाले से जब ये महकमा मेरे हवाले किया गया तो 100 डेज़ एजेंडा भी था। उस 100 डेज़ एजेंडा के अंदर भी पूरी कोशिश की कि हम उसमें परफॉर्म कर सकें। अपने उस 100 डेज़ एजेंडा के अंदर सबसे पहले तो हम अपने आप को लेके आएँ, लेके आने के बाद हम उसके अंदर परफॉर्म करें। अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर रही है। तो मैं एक छोटी सी ब्रीफ आपको ये देता चलूँ कि जो ये महकमा लेबर है, लेबर मिनिस्ट्री है, ये है क्या। इसके अंदर जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सबसे जो बड़ा डिपार्टमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। और ये सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जैसे कि मैडम ने भी आपसे ज़िक्र किया कि ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, ये मज़दूरों को उनको सेहत फराम करता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस मज़दूर को, बल्कि उसके पूरे कुंबे को, जिसमें उसके माँ बाप और बीवी बच्चे शामिल हैं। अगर एक बंदा हमारे पास एक लेबर रजिस्टर्ड है तो हमने सिर्फ उस लेबर को हेल्थ केयर नहीं देनी, बल्कि उसके माँ बाप और उसके बच्चों को भी, उसकी बीवी को भी हमने हेल्थ केयर देनी है। हमारे क्योंकि हम जो डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये रजिस्ट्रेशन करता है जो फैक्ट्रीज़ में जो लेबर काम करती है। तो तकरीबन अब तक जो हमारे पास अदाद व शुमार हैं वो 10.5 लाख लेबर हमारी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है। जब ये महकमा हमारे पास आया था तो उस टाइम पे तकरीबन 8.5 लाख के करीब जो लेबर थी वो रजिस्टर्ड थी। इसके अंदर हमने इस 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख तकरीबन लेबर की रजिस्ट्रेशन का हमने इजाफ़ा किया है, और उसमें 60 से 65 लाख अफराद को हम ये सेहत मुयसर कर रहे हैं, उसके फैमिली मेम्बर समेत। और इसमें 24 जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स शामिल हैं, इसके अंदर 7 छोटे हॉस्पिटल्स शामिल हैं। तकरीबन 137 के करीब हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं, और 64 के करीब हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं। और इसके साथ ये डिपार्टमेंट जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये इसके साथ इसकी जो ग्रांट्स हैं उसमें हमारी जो पेंशन्स हैं वो भी ये फराहम करता है। तो बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और इसके साथ फिर दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है हमारा वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जिसमें ये डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट, स्कॉलरशिप ग्रांट्स जो ये लेबर के बच्चों को फराहम करता है। और इसके साथ फिर हमारा डीजी लेबर है जो बिलखुसूस जो फैक्ट्रीज़ में लेबर काम करती है उनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स उनको देखता है। और साथ फिर चौथा जो इसके साथ है लेबर कोर्ट्स हैं, वो इस मिनिस्ट्री के साथ अटैच हैं कि कोई मज़दूर का कोई अगर हक तलफ़ी हुई है तो अपने हकूक़ के लिए लेबर कोर्ट्स में जा सके। इसके अंदर इस डिपार्टमेंट में जब ये डिपार्टमेंट आया तो इसमें हमने सबसे पहले लेबर पॉलिसी 2019 हमने लॉन्च की, वो असम्बली से हमने मंजूर करवाई। और उसके बाद डोमेस्टिक जो वर्कर बिल है, आज तक हमारे पाकिस्तान में किसी सूबे में इसके ऊपर काम नहीं किया गया था। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों के, जिनको पहले मुलाजमीन कहते थे, हमने उनको वर्कर्स का दर्जा दिया, उनका हमने बिल मंजूर करवाया। और उसके साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो ऑश का बिल था, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से थे, वो हमने बिल पे इसमें मंजूर करवाया अपने दौरे हुकूमत में। और उसके साथ जो सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी, अगर मैं इस पे कोई मुझे शक नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी इस गवर्नमेंट की कामयाबी है जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, जो बिलखुसूस जो मैं समझता हूँ कि ये 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हुआ था और 10 साल तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। हमारी हुकूमत ने आते ही इसके ऊपर काम किया और वर्कर वेलफेयर फ़ंड बिल जो है वो 2019 में हमने मंजूर करवाया। जो पैसा जो हमें भीख की सूरत में फेडरल से मांगना पड़ता था, जो लेबर की खून पसीने की कमाई है, जो उनकी वेलफेयर के ऊपर खर्च होता था, वो हमें मांगना पड़ता था।
بہت زیادہ کیسز جو ہیں ان کی ڈیتھ گرانٹس ہیں, میرج گرانٹس تھیں, اسکالرشپ گرانٹ تھیں, یہ بہت زیادہ اس کی پیڈنسی تھی. 4 سال 5 سال تک وہ اپنے حقوق سے محروم تھے. یہ فنڈ ہم نے منظور کرایا, اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, اس ڈیولوشن کے اوپر ایک میکینزم بن رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑھ کے ہماری اللہ کا شکر ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک وہ اسمبلی سے بل منظور نہیں ہوا, وہ ہمارا ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے. اور یہ وہ پیسہ ہے کہ جو فیکٹریز اپنے مزدوروں کو 5% اپنی کمائی کا اپنے مزدور میں بانٹتی ہیں, جو لیفٹ اوور اماؤنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کے خزانے میں, محکمے کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. وہ 10 سال سے ایک سٹے کے اوپر چارہ تھا, کیونکہ اس کا کوئی بل ہی نہیں تھا. تو وہ ہمارا آرڈیننس آیا, اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا, اور ہماری لیبر جو ہے اس میں بہتر فیل کرے گی. اچھا, اس میں جو اور جو بڑی ہماری اچیومنٹس میں تھا, جو ہم نے یہ 2 سال میں کام کیا, ہمارا کیونکہ پرائم منسٹر کا, ہمارے چیف منسٹر کا یہ ویژن تھا کہ اپنے محکموں کو مضبوط بنانا ہے. مضبوط بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, یا کرپشن کو پاک کرنے کا. ڈنڈے کے زور پہ کرپشن نہیں کم کی جا سکتی, ختم نہیں کی جا سکتی, کہ اپنے محکموں میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس سے آپ کی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو, کم سے کم ہو. اس حوالے سے ہم نے آٹومیشن کے اوپر زور دیا کہ ہمارے محکمہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو, آن لائن سارے میکینزم ہو, رجسٹریشن ہو. تو اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے آن لائن رجسٹریشن سسٹم کا آغاز کیا. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے, اور اب جتنی رجسٹریشن ہے فیکٹریز کی وہ تمام تر آن لائن ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو کانسیپٹ تھا, جو ویژن تھا, اس کے بالکل 110% اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا بھی قیام جو ہے مکمل کیا. اب جتنی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے فیکٹریز سے لیبر کی, وہ تھرو اب آن لائن کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے. آج کے دن تک یہ ہم نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے کے اندر 92% تک, 100 میں سے 92% تک جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے جو فیکٹریز سے محکمے میں جمع ہوتی ہے وہ تھرو آن لائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جو کیونکہ ہمارا ایک ہاسپٹل, ہم ہیلتھ کیئر دیتے ہیں سوشل سیکیورٹی میں, تو اس میں ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ اب ہاسپٹلس کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم لائیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی لیبر گئی ہے, اس نے اپنا چیک اپ کرایا ہے, کہ اس کا بھی پورا کا پورا میکینزم ہو. اس کے اندر ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ پرفارمنس سسٹم لانچ کیا ہے, جو مکمل ہو چکا ہے, اور بہت جلد ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے چیف منسٹر پنجاب کی صحت بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ای کارڈ, جو ہمارا لیبر جو پہلے لیبر کا مینول کارڈ تھا, جیسے ایک پرانے شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے اس طرح کا کارڈ تھا, اب اس سے ہم نے ای کارڈ کے اوپر ہم نے وہ سارا کا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا, اور ای کارڈ ہم نے متعارف کرایا ہے. 20 سے 25 ہزار ہمارے 10.5 لاکھ لیبر میں سے وہ کارڈ بن چکے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم 15 یا 16 فیبری ہم اس کی ڈیٹ رکھ رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اناگریٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہم نے پی آئی ٹی بی سے, شوکت خانم ہاسپٹل سے ہم نے سافٹ ویئر لیا, اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مکمل ہوگا. اس میں ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم کا قیام بھی ہم عمل میں لا چکے ہیں, کہ کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ اسی ٹائم پہ ہی پتہ چل جائے کہ کس فیکٹری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور لیبر کو کس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی ہے, اور اس کو خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو وہ حادثے کی نوعیت کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس سسٹم کا آغاز کر دیا ہے. پھر ہے ہمارا نیو انسپیکشن رجیم کا آغاز, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کاروبار کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو جو ہم سہولیات ہیں وہ ہم فراہم کرنے, کس طرح ہم فراہم کر رہے ہیں, اس کی مانیٹرنگ کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. صحت کے حوالے سے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں, کیونکہ ہم نے یہ ہاسپٹلز ابھی اس کا ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, جو ہمارے نئے ہاسپٹلز کا قیام ہے وہ سرگودا میں انشاءاللہ, قصور میں, ڈی جی خان میں اور رحیم یار خان میں. یہ ہم نے زمینیں بھی لے لی ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے بجٹ بھی اس کا ہم نے رکھ لیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے نئے ہاسپٹلز بننے جا رہے ہیں. جہاں جہاں پر پورے پنجاب میں ہماری ڈسپنسریز تھیں ان کو ہم اب میڈیکل سینٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں. میڈیکل سینٹرز کے اندر جہاں پر آپ کی جو ایکس رے مشین ہے, سی ٹی اسکین ہے,
وہ سہولیات میسر ہوں گی تاکہ مزدوروں کو ان کی جگہ کے اوپر ہی انہیں یہ سہولیات فراہم ہونی چاہیے۔ اب ہم نے نئے میڈیکل آؤٹ لیٹس کا قیام، جس میں 12 میڈیکل سینٹرز کی ہم نے اپ گریڈیشن کر دی ہے۔ لاہور میں RAIC ہاسپٹل میں کارڈک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا قیام، جبکہ بچوں کے دل کے امراض کے لیے سرجری کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے۔ یہ ہماری جتنی پرفارمنس ہیں یہ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے ہیں، اور DG خان میں 25 بیڈ کا ہاسپٹل کا قیام جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، خواجہ فرید سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں کارڈیولوجی بلاک کا قیام، اور سوشل سیکورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں بھی ہم نے وارڈ جو ہے وہ کام اس میں شروع ہے۔ ملتان کے اندر بھی الحمدللہ تقریباً بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیشن کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہمارا جو آپ سے ذکر کیا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جو لیبر کو اب ان کی سہولیات فراہم کرتا ہے، میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹ، اس کے اندر ہم نے اضافہ کیا ہے۔ ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ تھی، ہمارے اس دور حکومت میں ہم نے اسے 1 لاکھ روپے بڑھا کے 6 لاکھ کیا ہے۔ اس میں جو میرج گرانٹ تھی وہ 3 لاکھ تھی، اس کو ہم نے 4 لاکھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسکالرشپ گرانٹس بھی ہم نے بڑھائی ہیں۔ اس مختصر عرصے کے اندر 2013 سے پینڈنگ کیسز چل رہے تھے ہمارے بورڈ کے، وہ الحمدللہ تمام تر پیڈنسی ہم نے 2019 تک ختم کر دی ہے۔ اب 20 کی کچھ رہ گئی ہے، تقریباً کوئی 8 ارب کے قریب ہم نے فیڈرل حکومت سے پیسہ لیا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جو 5 سال سے جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یا جن کے مزدور جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے، یا جن کی شادیاں جو تھیں وہ پینڈنگ تھی، نکاح کے اوپر جو ہے وہ ان کی 3-3 4-4 سال سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو تمام تر ہم نے پیڈنسی جو ہے وہ ختم کی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا کیونکہ لیبر کالونیز ہمارا ایک بہت بڑا اس میں ایک سیکٹر ہے بورڈ کے اندر، اس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا۔ لیبر کالونیز تقریباً 1400 فلیٹس جو تھے ملتان کے اندر اور لاہور کے اندر، اس کی ہم نے بیلٹنگ کی، وہ ہم نے حوالے کیے۔ اس کے ساتھ ابھی ہم جو فردر جو لیبر کالونیز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مالکانہ حقوق دیں۔ یہ ہماری رینٹل بیسیکلی پالیسی ہوتی ہے کہ لیبر کو ہم فلیٹس یا ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، پھر ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، لیکن اب ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں، اس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو قبضہ مافیا، ہماری بہت سی زمینیں ایسی تھیں جو بورڈ کی تھی جس کے اوپر قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا، وہ ہم نے واگزار کروائیں۔ تقریباً 4 سے 5 ارب کی وہ زمینیں تھیں جو ہم نے واگزار کروائی ہیں۔ جو فلیٹس تھے جیسے ہمارے ڈیفنس کالونی کے اندر تقریباً 148 فلیٹوں کے اوپر قبضہ تھا، جس میں سے 122 کو ہم نے واگزار کروایا ہے، اور جو مزدور حقدار ہیں وہ ان کو ہم نے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تقریباً ہمارے اس بورڈ کے اندر ہمارے جو سکولز ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے 36 اضلاع میں سے 26 اضلاع کے اندر ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم موجود ہے۔ اگر جن کی بلڈنگز دیکھیں تو الحمدللہ بلڈنگز جو ہیں وہ پرائیویٹ جو اچھے ادارے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ بہتر ہیں، جس میں تقریباً کوئی 60,000 کے قریب ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ تعلیم جو ہے وہ پہلی سے لے کر اور 12ویں تک ہے، مختلف جگہ کے اوپر، کسی جگہ پہ ہائی سیکنڈری ہے، کسی جگہ پہ دوسرے سکولز موجود ہیں۔ اور اس کے اندر بھی ہم اب بہتری یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم اب مزید سکول بنانے کی بجائے لیبر کے بچے کو وہ کسی بھی جگہ کے اوپر تعلیم حاصل کرانا چاہے وہ کرے اور ہم اس کی پیمنٹ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم ایک پورا ایک پلان مرتب کر رہے ہیں، جس کے اندر ابھی آج بھی اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پہلے ہم بچوں کی کاسٹ نکال رہے ہیں کہ فی بچے کے اوپر ہمارے سکولز کے اندر کتنی کاسٹ آ رہی ہے۔ اس کاسٹ نکالنے کے بعد پھر ایک ہم فارمولہ بنائیں گے کہ اس فارمولے کے تحت اگر کوئی لیبر کا بچہ کسی بھی تحصیل میں یا گاؤں میں وہ رہائش پذیر ہے تو وہاں پر ہی اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرا سکے، جس سے ایک اندازے کے مطابق ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 1.5 سے 2 لاکھ بچوں کو ہم تعلیم انشاءاللہ تعالیٰ دے پائیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ عمران خان کے ہونہار کھلاڑی نے کس طرح سے ایک ایسی گراؤنڈ میں جس کو سابقہ حکمرانوں نے جاتی عمرہ کی اسٹیٹ کے ضلع سبحانی کے خاندان نے
उखाड़ बिछाड़ के इस इदारे की तबाह हाली में जो किरदार अदा किया, आज जो सबसे अहम अचीवमेंट आपके लिए, मीडिया के लिए, कि जो ये पूछते हैं कि कहाँ है तब्दीली और पाकिस्तान तो नहीं बदला, तो उनके लिए मेरे भाई ने बताया है कि जो हकीकी तब्दीली पंजाब में आई है कि इससे पहले लेबर इंस्पेक्टर की जेब गर्म होती थी जिस फैक्ट्री में वो जाता था, और गठजोड़ होता था फैक्ट्री वाले का उस सरकारी अफसर के साथ, और उस मज़दूर को रजिस्टर नहीं किया जाता था, और उसके इवज़ उस मज़दूर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बन के जब उस फैक्ट्री में वो पहुंचता था तो वो अपने बाल बच्चों की फ़िक्र लेके वापस आ जाता था, क्योंकि उसे कौम के इस मज़दूर के बच्चों की बजाय चंद टकों पे ख़रीद लिया जाता था, और वो अंडर इनवाइस कर लेता था, वो रजिस्ट्रेशन एक्यूरेट नहीं देता था, और सोशल सिक्योरिटी की मद में वो सरमायादार जो था वो डाका डाल रहा होता था उस गरीब की मेहनत पे, उस मेहनत कश के पसीने को जो खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी रजिस्टर होनी चाहिए थी, वो किसी एक फ़र्द के हाथ में यरगमाल बन जाती थी। तो ये हकीकी तब्दीली थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की विजन के मुताबिक और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक अब वहाँ ऑटोमेशन आ गई, डिजिटलाइज हो गया सिस्टम, और किसी फ़र्द का किरदार ख़त्म हो के वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई। अब वो लेबर इंस्पेक्टर की मरून मिन्नत मज़दूर नहीं रहा, वहाँ पे एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा निज़ाम मुतारफ़ करा दिया गया कि फैक्ट्री वाले को ये मजबूरन अब इस हुकूमत पे एतमाद करते हुए अपने एक्यूरेट लेबर को डिक्लेयर करना पड़ा, और जिसका फ़ायदा उस मेहनत कश मज़दूर को हुआ, और वो चोर बाज़ारी और चोर दरवाज़े जो थे वो बंद हुए, और वो हुकूमती ख़जाने में पैसा आया जो आज हम उस मज़दूर की फ़लाह बहबूद पे खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम तरीन चीज़ जो आपने देखा कि किसी भी मज़दूर की माली मुआवनत के साथ साथ जहाँ उसकी सेहत की सहूलतें हमें अज़ीज़ हैं, वहाँ उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको रोशन और तबिंदा बनाना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, और वो मुस्तकबिल के रोशन दरख्शां सितारे उस मज़दूर के उसी वक्त फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं जब उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये जो एक दोहरा निज़ाम था, एक अमीर के लिए और पाकिस्तान और गरीब के लिए और पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे की अमली ताबीर जो है वो लेबर मिनिस्ट्री दे रही है पंजाब के अंदर, जहां वो मज़दूर के बच्चे को भी अब किसी भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ऐसे अदारे में जहां उसका मेरिट बनता है, उसका हक बनता है, उसका हक जो है हकदार को लुटाने के लिए हम पुरज़म हैं, और उस बच्चे की जो फ़नी तरबियत जो उसके साथ जुड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आवाम दोस्त पॉलिसीज़ की अक्कास है। और आज के इस फोरम से जो पैगाम हम देना चाहते हैं कि हमें ठीक है इधर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बड़े बड़े अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज चाहिए, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट हमारी अपने कौम के उन बच्चों पे होनी चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो असल हमारा असासा है। इससे कन्नी कुतराती रही ज़िले सुबहानी और जाती उम्रा का उनका ख़ानदान, क्योंकि अगर मज़दूर का बच्चा पढ़ लिख जाएगा और अगर
आम गरीब का, मेहनत कश का बच्चा भी वो क्वालिटी एजुकेशन ले लेगा तो फिर ये 2 नंबर नस्ल दर नस्ल मरूसी सियासत के ज़रिए ग़ुलाम बनाने वाले जो हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत होगी और निज़ाम बदलेगा, सोच बदलेगी। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन ही एक वाहिद ज़रिया है। तो इंशाअल्लाह हमने कौम को जगाना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वादा किया हुआ है कि हमने इस कौम को बार बार इसको झंझोड़ना है, इसकी सोच को बदलना है और सोच को बदल के हमने इस निज़ाम को बदलना है। ये सारी बातें बड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी का मसला महंगाई है। आज चीनी देख लें 100 रुपये हो गई है, इस तरह बाकी चीज़ें देख लें, और पेट्रोल जो है वो देखें, जो डीजल है वो बिक रहा है ईरानी। ये सारी चीज़ें कौन सेट करेगा? इसमें ऐड कर लें मैडम, पंजाब हुकूमत या वफाक आज तक चीनी की एक्स मिल प्राइस का तयन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो शुतर बेमहार हैं, आज़ाद है और अपनी मन मर्जी की कीमतें देते हैं। 5 दिसंबर को चीनी की प्राइस 71 रुपये थी एक्स मिल, आज वो 84 रुपये हो गई है, और मार्केट रेट का फ़र्क आप खुद देख लें। तो ये हुकूमत ने तो खुद आज़ादी दी हुई है चीनी माफिया को। देखें, फ़ख्र से आपको ये बताना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, दोनों में से किसी की शुगर मिल नहीं है। हमारे साबका गठजोड़ लुटेरा ग्रुप जो था उनकी आप दास्तान निकालें तो जरदारी साहब से शुरू हों और शरीफ फैमिली पे आके ब्रेक लगाएं तो सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे अफराद और ऐसे ग्रुप नज़र आते हैं जो ना सिर्फ मिल ओनर हैं बल्कि इस पूरे प्रोसेस के बेनिफिशरी भी रहे हैं। ये एजाज़ भी इस हुकूमत को हासिल हुआ कि हमने वो शुगर माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो गंदम माफिया हो, वो कब्ज़ा माफिया हो, वो मज़दूर का इस्तेसाल करने वाला माफिया हो, जहाँ जहाँ जिस कोने खुदरे में घुसा माफिया था और सिरियाँ निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को डसता था, उनकी सिरियों को कुचलने का भी ये एजाज़ इमरान ख़ान को हासिल हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी वो माफिया जो है वो 100% ख़त्म नहीं हुआ है। उस माफिया की जड़ें जो हैं हमारे निज़ाम में मजबूती से सरायत की हुई हैं और उन जड़ों में तेज़ाब हम फेंकते हैं, कुछ उसमें जड़ें जल जाती हैं, कुछ फिर से हरी हो जाती हैं। तो ये एक अमल है, ये मैच है हमारा माफिया के साथ। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस कौम से वादा किया हुआ है कि हमने इस माफिया को मलियामेट करना है, शिकस्त देनी है। जहाँ कहीं पॉलिसीज़ का फुकदान रहा है, जहाँ कहीं हमारी नाकस हिकमत अमली रही है और उसका नुकसान आवाम को उठाना पड़ा है, उनका भी जायज़ा ले रहे हैं हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। जो आपने कहा कि हमारा इस वक्त एक्स मिल रेट जो है वो बढ़ गया है, गन्ने का काश्तकार जो है उसने आज 300 रुपये जो सरकारी रेट है उससे हट के 300 रुपये यानी 100 रुपया महंगा, उससे भी ऊपर वो मिल मालकान को गन्ना फ़रोख्त कर रहा है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमारे अखलाकी जवाज़ के साथ भी जुड़ी हैं और हम जो छोटे काश्तकार और बड़े काश्तकार हैं उनके दरमियान भी अब कोई यकसा पॉलिसी नहीं, कोई अलग-अलग पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। हमाद अज़हर साहब को वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी दी है और आवाम की इस तकलीफ़ के तदारक के लिए भी हम पुरज़म हैं कि इस माफिया को भी हम ठिकाने लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये आवाम की बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं वो सस्ते दामों उन तक पहुँचाने के लिए हर बेहतर से बेहतर हिकमत अमली मुतारफ़ कराएंगे। डॉक्टर साहबा, ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज़ की जानिब से आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मरियम नवाज़ की सियासत को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये अब आप बार बार जिन्होंने लिफाफे में और शापर में डाले इस्तीफ़े थे, अब वो मौसम ऐसा हो गया कि वो सिले हो गया, पंजाबी में कहते हैं।
तो उल्ली लग गई है, तो उस फंगस से बचाने के लिए उन शापर से निकालें, हवा लगाएं और आवाम को दिखाएं कि वो इस्तीफ़े जो हैं वो कौन से शापर्स में, बैग्स में, बोरियों में लाद के सर पे उठा के जाली राजकुमारी शहर शहर फिरना चाहती है। जहां उन इस्तीफ़ों को पहुंचना चाहिए वहां पे लाएं और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत भी करेंगे और उल्ली शुल्ली साफ़ करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के बड़े दिल को लुभाने वाले वो नज़में सुनाया करते थे आपको हबीब जालब की कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, अगर आपको याद हो तो वो माशाल्लाह से उस कलाम को नैब हुकाम के साथ उसी सुर से सुना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जो सवाल नैब उनसे पूछती है उसी तरह वो सुर में उन्हें बताते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ये वो बार बार जो सुर है वो नैब को सुना रहे हैं और यकीनन हबीब जालब की रूह जो है वो तड़पती है कि कहाँ उनका कलाम और कहाँ ये लुटेरे और कहाँ इनका वो कौम के दर्द के लिए करते थे ये आओ बका और ये ज़ात की दर्द के लिए बैन डाल रहे हैं। तो इस कलाम की तौहीन है कि इसे शहबाज शरीफ पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी। कि अभी आपने बात की दो नहीं एक पाकिस्तान की, तो बार बार जो अपोजिशन है वो हुकूमत की रेट को चैलेंज करती है। आप जलसों की इजाज़त नहीं देते, रैलियों की इजाज़त नहीं देते, वो जलसे भी करते हैं, रैलियाँ भी करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इस्लामाबाद की जगह पिंडी जाएंगे, तो आप उनको पिंडी जाने की इजाज़त देंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद तो आपने इजाज़त दे दी। दूसरा जो ज़िले सुबानी की बात की, वो जो ज़िले सुबानी बाहर चले गए हैं, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आप उनको वापस नहीं ला सकते तो ये बयान क्यों देते हैं? अगर आपकी फसली नहीं है तो भेजा क्यों था? तो दो नहीं एक पाकिस्तान में वो ज़िले सुबानी कब वापस आएंगे? पहली बात तो ये है कि आज हमें जो है वो लेबर मिनिस्टर साहब से सवाल करने चाहिए जिनके डिपार्टमेंट में आप आए हैं, और आप जो है वो सियासी मुर्दों का जिक्र कर रहे हैं। आप जो है वो जो हमारे असल हीरो हैं इस कौम के, वो लेबर मेहनत कश मजदूर, उनका पहले न्याज साहब से सवाल करें, उसके बाद ये जवाब मैं रिजर्व रखती हूँ, अभी दूंगी जवाब। जी जी ये बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट भी फॉल करते हैं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में हज़ारों न्यूज़पेपर निकल रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोग मुलाजमतें करते हैं। मुलाजमतों पे रखने का, निकालने का कोई बड़ा तरीकाकार वजह नहीं है। लोग बेरोज़गार भी होते हैं और लेबर कोर्ट्स में केसेस भी पेंडिंग रहते हैं। अगर वो बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाए, उसको वो जो पैसे वगैरह है वो भी नहीं मिलते। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट क्या कोई जामिया हिकमत अमली बना रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग सहाफ़ी 60 साल की उम्र को पहुँचे तो जो उसका फ़ंड काटा जाता है वो उसे बाकायदा तौर पर मिलना शुरू हो जाए, या जो लोग निकाले जाते हैं मुलाजमतों से उनके हवाले से लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई जामिया व हिकमत अमली है उनकी बहालियों के लिए? देखें, हमारा डिपार्टमेंट तो उनको उस लेबर को देखता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे जी जो रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनको लेबर डिपार्टमेंट नहीं देखता। हमारे डिपार्टमेंट जो फैक्ट्रीज़ में लेबर काम करती है उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं और उनको हम सहूलियात देते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि EOBI जो है वो फेडरल का सब्जेक्ट है और मेरा ये क्योंकि डेवोल्यूशन के अंदर EOBI भी डिवॉल्व हुआ था और WWF भी डिवॉल्व हुआ था, जिसके अंदर हमने WWF का तो पंजाब में कानून पास करा लिया और EOBI हम समझते हैं कि उसकी डेवोल्यूशन ठीक नहीं हुई थी, वो फेडरल में वापस जाना चाहिए। अगर कोई लेबर चाहे KPK की है, बलूचिस्तान की और यहाँ की अगर दूसरे सूबों में काम कर रही है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अपने सूबों से ही रिटायरमेंट पेंशन मिलनी चाहिए। तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। जो लेबर इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, और इसमें आपके जो वेज अवार्ड का जब हमने इशू उठाया और वेज अवार्ड आपको ग्रांट हुआ तो उसके अंदर ये एक लैकुना था, और चूँकि ये आपकी इस वक्त जो है वो सबसे अहम ज़रूरत है, जितना मीडिया की ग्रोथ हुई है
मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है और इस इंडस्ट्री को फाल, मुतहरक और अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें एक मेकनिज़म प्लान करने की ज़रूरत है। हम आपकी APN, CPNE और जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके साथ बैठते हैं और PFUJ और आपके साथ अब चूँकि हमारी एमरा भी बड़ी एक्टिव है तो हम बैठते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा जो मेहनत कश मज़दूर है उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी जो आजर और अजीर को दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दे। इंशाअल्लाह तब्दीली सरकार ये काम भी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। लास्ट क्वेश्चन बेटे। जी जी उस्मान बुज़दार साहब की तबीयत इस वक्त कैसी जी जी। है? सुना उनका दोबारा कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। उस्मान बुज़दार साहब की जो तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें बेहतरी आ रही है। मैं आप सब की जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनकी खैरियत पूछी, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और अपील करती हूँ कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। उनका कोरोना टेस्ट यकीनन दोबारा जो था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन दोबारा से वो टेस्ट जो है हम करने जा रहे हैं और जल्द इस हवाले से उनकी सेहत की अपडेट आपसे हम शेयर करेंगे। वो आइसोलेशन में होते हुए भी उन्होंने अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अदा की और आइसोलेशन में वो फाइल वर्क जो था रुका नहीं, वो करते रहे और मैं मतलब मुतमन्नी भी हूँ और ख्वाहिशमंद भी हूँ कि वो जल्द अज जल्द अपने ऑफिस में आए ताकि पब्लिक रिलीफ के जो काम अधूरे थे उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। एक आखिर में चूँकि यहाँ बात हो रही थी कि हम वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं तो सहाफ़ियों को क्यों भूल जाते हैं। देखिए सहाफ़ी किसी भी हुकूमत नहीं, अदारे नहीं, इस मुआशरे के दुखों का दावा करने वाली ऐसी मरहम है कि जिसको आप वो ऑलरेडी चूँकि शार्ट हो गई है क्योंकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स की ग्रोथ की वजह से सहाफ़ती बरादरी के अंदर भी जो उसका रोल था, जो उसकी कंट्रीब्यूशंस थी, खिदमात हैं, उन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक जहाँ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहाँ आपकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं और उसके साथ पैरेलल हमें अपनी प्लानिंग को भी आपके ज़रूरियात से हम आहंग करना है। गैप्स हैं, आई ओन दैट, और वो गैप जो हैं वो आजर अजीर का जो गैप है उसको हुकूमत पुल बन के दोनों के दरमियान दूर कर सकती है और उसके लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं। 2.5 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट आए हुए और पहले दिन से आप जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी न किसी तरह नेगोशिएशन के अंदर हैं और आप कह रहे हैं कि हम आके इस सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। लाहौर में एक एफलॉग डिलीवर करना था, 2.5 साल हो गया, आप वहाँ पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं करवा सके। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि ये जो पॉलिसी आप लाने की बात कर रहे हैं इसकी कोई डेडलाइन कब देंगे आप? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई को जो परेशानी अपनी और बाकी साथियों की है मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन देखना ये है कि हमें जो सबसे पहला इस हुकूमत की कोताहियों और नालायकियों में जो आला दर्जे का अवार्ड था वो आपका वेज अवार्ड था और जो इतने अरसे से आपके प्यारे जो थे उस पे साम बन के लेटे हुए थे और हमने आपको आपका वो हक दिया और 2 वेज अवार्ड मेरे आने के बाद वो आप तक पहुँचे और बाकियों पे काम हो रहा है। इसके साथ जो आपकी पेडेंसी थी, आप इश्तिहार छाप चुके थे, चला चुके हुए थे और ज़िले सुबहानी को वज़ीर आज़म के ख्वाब दिखा चुके हुए थे, तो उनको चिकनाचूर करने का एजाज़ भी हमें हासिल हुआ कि इश्तिहार उनके चलाए, पैसे हमने दिए आपके और आज तक वो पेमेंट्स आपकी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि सहाफ़ी कॉलोनी, तो देखिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 14 साल बाद
आपकी उस सहाफ़ी कॉलोनी के नए ब्लॉक को इनागुरेट करेंगे। आपके बी ब्लॉक के कब्ज़े जो माशाल्लाह शोबाज शरीफ की सरकारी सरपरस्ती में नाम सहाफ़ियों का और वहाँ काबज़ उनके दरबारी और हवारी थे, उनको निकालने का सेरा भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएगा। बाकी जो आपकी अल्टरनेटिव हर सूबे के अंदर और डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स और ज़िले की सतह पे हम आपकी सहाफ़ी बरादरी की रिहायशी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, ये बात मेरे दिल को ज़रूर लगी है कि लेबर पॉलिसी के अंदर जो हमारा सहाफ़ी है उसको भी लेबरर का दर्जा देते हुए कैटेगराइज़ किया जाए और उस पे हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनका लीव इनकेशमेंट जो है वो बड़े अरसे से रुका हुआ है। उसके साथ साथ आपने कहा अब सिर्फ न्याजी साहब से सवाल की तादाद में तो आपने इजाफा किया है, 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन सबके पास जो हेल्थ कार्ड मौजूद नहीं है। 5 लाख या 4.5 लाख जो है मजदूरों के पास हेल्थ कार्ड है। तमाम को जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तो कैसे सहूलियात हासिल कर सकते हैं? अच्छा, जो लीव इन कैशमेंट का मामला है डिपार्टमेंट मामला है और इसको हम गवर्निंग बॉडी में ला के डिस्कस कर रहे हैं। जो दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2010 से लेकर 2018 तक जो रजिस्ट्रेशन हुई पिछले एतवार में वो 1,22,000 हुई है और 2018 से लेकर आज के दिन तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1,30,000 हुई है। एक साल पे आप 8 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें और एक साइड पे सिर्फ 2 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि R5 कार्ड, ये बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को मैं पहले नहीं दिखा सका कि R5 जो कार्ड है वो पिछली हुकूमत ने जो दिया हुआ था वो तकरीबन 3,75,000 था, 3,25,000 और हमारी हुकूमत इस सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हम 5,70,000 तक पहुंच चुके हैं। और जो नया हम कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि लेबर को हमने उसको असल शनाख्त पे लेके आना है, ये लेबर का वो ई कार्ड है जो हम लॉन्च कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी इनॉग्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। मेहरबानी फरमाइएगा हमारी इंडस्ट्री को भी आप ई कार्ड मिले हैं। जी ज़रूर, आप कह रहे हैं कि वॉलंटरीली लोग शामिल हों। जी ज़रूर। अच्छा, इसके अंदर एक जॉब सेंटर जो नया काम हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के हवाले से, इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एक नई सोच डेवलप हो चुकी है, इदारों के अंदर हो चुकी है, हमारी हुकूमत के अंदर हो चुकी है कि ऐसे ख़ानदान या ऐसी लेबरर जो इनफॉर्मल सेक्टर में थी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस हैं, उनकी भी हम इनरोलमेंट करने जा रहे हैं। और जो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा जहाँ पर लेबर काम करती है उसको रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं और इसके अंदर भी हम काम करें कि उसको R2 या R3 तक ले आएँ कि जहाँ पर कम लेबर भी है उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो और उसको भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज कहते हैं कि लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, आप कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे पाबंदी है। डिपार्टमेंट कंफ्यूज है, लेबर इंस्पेक्टर्स काम नहीं कर रहे, इस कंफ्यूजन का शिकार आप लोग हैं, डिपार्टमेंट है, इसको क्लियर कब करेंगे, इसका नोटिफिकेशन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बड़ा एक क्लियर इसके ऊपर हमारा एक विजन है कि हमने अपने इदारों में शफाफियत लेके आनी है, हमने इसमें करप्शन ख़त्म करनी है। जब हमारा कानून सोशल सिक्योरिटी का इजाज़त देता है कि जिसमें इंस्पेक्शन तो होगी लेकिन उस नए मैकेनिज़्म के तहत हम इनरोलमेंट कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। हमारा जो ऑर्डिनेंस 20A है वो हमें इस चीज़ की सेल्फ असेसमेंट की परमिशन देता है, हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। न्यू इंस्पेक्शन रजीम मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। ये खौफ का एक आलम क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्टर है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ महकमे का कसूर है। जब एक महकमा जाता है साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके साथ मिल जाता है और गठजोड़ के साथ असल जो तजलीली होती है हकूक़ की, वो लेबर की होती है। हम चाहते हैं वो सही तरीके से अपनी लेबर रजिस्टर्ड करवाए और हम उनके हकूक़ दें। न्यू इंस्पेक्शन रजीम के ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च भी कर रहे हैं। 2 जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक DG लेबर है और एक सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करता है,
اس کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جا کے چیک کرے کہ وہاں پر ان کی صحت کیسی ہے یا وہ وہاں پر ان کے سیفٹی میجرمنٹس کیسے ہیں. ہمارا صرف ہے کہ کتنی لیبر ہے اس کی کلیکشن ہے. تو ہم کلیکشن کے لیے ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ جو تمام کی تمام جو کلیکشن ہے ڈائریکٹ فیکٹری سے ڈپارٹمنٹ کے اندر آنی چاہیے. دوسرا ڈیجی لیبر ہے, اس کے اندر ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک نئی انسپیکشن رجیم کے تحت ایک ویژن زیرو کے تحت ایک نیا ہم نے ویژن زیرو کا بھی ہم نے انعقاد کیا ہے. پیچھے کانفرنس بھی ہوئی تھی کہ فیکٹریز کے اندر کم سے کم حادثات ہوں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس کے اندر ڈیجی لیبر کام کر. اچھا, WWF کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جامعات کے جو ہے کروڑوں روپے کے واجبات دینے اور جامعات جو ہے وہ بچوں کو نکالیں گے. تو یہ کب تک جو ہے WWF جو ہے ان کے جامعات کے فنڈ دے دیں گے اور بچوں کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ ایک اندازے کے مطابق کروڑوں نہیں ہے, 1 کھرب اور تقریباً 42 ارب روپیہ ہے جو WWF کے پاس موجود, جو ان کے پاس ہے, جو ہمارے تمام صوبوں کا حق ہے, جس میں پنجاب کا حصہ کم سے کم 75 ارب 75 بلین بنتا ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے اس کے ہم امین ہیں. یہ پیسہ پچھلی حکومتوں نے اس کے اندر خیانت کی, گناہ کیا. جو وہ پیسہ تھا جو لیبر کی خون پسینے کی کمائی تھی, انہوں نے دوسرے پروجیکٹس کے اوپر لگایا. اسی چیز کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہ پیسہ پنجاب میں آئے یا دوسرے صوبوں جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے. اسی وجہ سے ہمارا سٹانس یہی ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ جلد سے جلد فعال ہو. اس کے اندر PRA بھی ایکٹیو ہو چکا ہے. کوئی FBR کی طرف سے کچھ لکونے ہیں وہ ان کو دور کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ہم ایک میکنزم کے تحت لیں گے, انسٹالمنٹس میں لیں گے, اور باقی جو نئی کلیکشن ہوگی وہ پنجاب خود کرے گا. بہت شکریہ.